بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا ساتھ جواد باقر۔ آج کے اس 6 بجے کے خبرنامے میں آپ کو بتائیں گے کہ بھارت کی خطے میں چودراہٹ کا خواب بھی چکنا چور ہو گیا اور پاکستان میں عید کس طرح سے منائی گئی اور جبکہ ایس او پیز پر کس حد تک عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ بھارت کے خطے کی چودراہٹ کا خواب تو آخرکار چکنا چور ہو گیا۔ علاقے کا جغرافیہ بدلنے کی کوشش پر چین کا منہ توڑ جواب۔ لداخ میں متنازع ایریا کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ سکم بارڈر پر بھی مزید فوج تعینات کر دی۔ بھارت بھیگی بلی بن کر رہ گیا۔ چین اور بھارت کے درمیان جاری کشمکش میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ چین نے لداخ اور سکم کی سرحد پر مزید 5,000 فوجی بھیج دیے ہیں۔ چین نے کہا ہے کہ بھارت نے متنازع علاقے کا سٹیٹس یک طرفہ طور پر تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تفصیل کے مطابق بھارتی فوج نہتے کشمیریوں پر بڑھ چڑھ کر ظلم کرتی ہے، لیکن چینی فوج کے سامنے بھیگی بلی بن چکی ہے۔ سکم اور لداخ کی سرحد پر چینی فوج کے مسلسل اضافے سے بھارتی فوج اور مودی سرکار کے ہوش اڑ چکے ہیں۔ سرحد پر چینی افواج کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ چین نے مزید 5,000 فوجی علاقے میں بھیج دیے ہیں۔ چین فوج زمین دوز بنکر بھی بنا رہی ہے۔ وادی گالوان کے اطراف میں چینی فوج کے 800 خیمے دیکھے گئے ہیں۔ چین کا کہنا ہے کہ بھارت وادی کے قریب دفاع سے متعلق غیر قانونی تعمیرات کر رہا ہے۔ چینی فوج نے بھارتی فوج کے ایک دستے کو گرفتار کر لیا، جسے بعد میں رہا کر دیا گیا۔ بھارتی آرمی چیف نے اسے شدید جھٹکا قرار دیا۔ چین نے کہا کہ بھارت نے سکم اور لداخ میں لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی۔ بھارت نے متنازع علاقے کا سٹیٹس یک طرفہ طور پر تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ بھارتی میڈیا نے ایسی تصاویر جاری کی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جہاں پہلے ہندوستانی فوج موجود تھی وہاں اب چینی فوج موجود ہے۔ یہ معاملہ 5 مئی کو شروع ہوا تھا جب مشرقی لداخ کی سرحد پر بھارتی اور چینی فوجی آمنے سامنے آ گئے تھے۔ ادھر بھارت کا نیپال کے ساتھ سرحدی تنازع بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ نیپالی وزیر اعظم نے نیا نقشہ جاری کیا جس میں کالا پانی، لمپیا دھورا اور لیپو لیک کے علاقے کو نیپال کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ نیپال نے کالا پانی کے تنازع پر بھارتی آرمی چیف مونج کے بیان کو اپنے عوام کی توہین قرار دے دیا۔ نیپال کے نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع ایشور پوکھرل نے سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کالا پانی کے تنازع پر بھارتی فوج کے سربراہ کے بیان سے نیپالی گورکھوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ گزشتہ ہفتے اب بھارتی آرمی چیف نے چین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اترکھنڈ میں تعمیر کی جانے والی نئی سڑک پر نیپال کے اعتراضات کسی کی ایما پر ہیں۔ ادھر بھارت کا نیپال کے ساتھ سرحدی تنازع بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ نیپالی وزیر اعظم نے نیا نقشہ جاری کیا جس میں کالا پانی، لمپیا دھورا اور لیپو لیک کے علاقے کو نیپال کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ پی آئی اے طیارے کو حادثہ کیسے پیش آیا، وجوہات کیا تھیں، غلطی کہاں ہوئی، فرانسیسی ماہرین کی پاکستانی پہنچ کر تحقیقات جاری۔ ماہرین کا طیارہ حادثے کی جگہ کا دورہ، 1 گھنٹے معائنہ کیا، پائلٹ کی گفتگو بھی سنی۔ ایئر بس کی ٹیم نے حادثے کا شکار جو طیارے کے ملبے کا بھی معائنہ کیا ہے۔ طیارہ حادثے کی تحقیقات کرنے کے لیے فرانس سے آنے والی 11 رکنی ٹیم نے ماڈل کالونی میں اس مقام کا جائزہ لیا جہاں جہاز گر کر تباہ ہوا تھا۔ ٹیم نے اس رن وے کا معائنہ بھی کیا جہاں پی آئی اے کے مسافر طیارے نے لینڈنگ کرنی تھی۔ غیر ملکی ٹیم کے ہمراہ پی آئی اے کی تحقیقاتی ٹیم اور ایئر فورس کے ماہرین شامل بھی تھے جنہوں نے 1 گھنٹے سے زائد جائے حادثہ کا معائنہ کیا۔ کنٹرول ٹاور اور پائلٹ کے درمیان ہونے والی گفتگو کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ٹیم نے رن وے پر جا کر اس مقام کا جائزہ لیا جہاں جہاز نے لینڈنگ کی کوشش کی تھی۔ فرانسیسی ماہرین خصوصی پرواز سے کراچی پہنچے تھے۔ سول ایویشن حکام فرانسیسی ماہرین کو جہاز حادثے کی جگہ کا دورہ کروایا۔ غیر ملکی ماہرین پاکستان کی تحقیقات کرنے والی ٹیم کو تکنیکی معاونت بھی فراہم کریں گے۔ سول ایویشن اور پی آئی اے کے متعلقہ افسران کو بھی جائے حادثہ پر طلب کیا گیا ہے۔ مزید اس وقت تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندہ ملک منور حسین سے۔ ملک منور حسین، ٹیم پہنچ چکی ہے، مزید کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے آپ کے پاس؟ جی، طیارہ حادثے کی تحقیقات کے لیے 11 رکنی یہ فرانسی ایئر بس کمپنی کی جو ٹیم ہے یہ ماہرین پر مشتمل ہے۔ وہ آج صبح کراچی پہنچی تھی اور انہوں نے کراچی پہنچنے کے بعد ماڈل کالونی میں جائے حادثے کا دورہ کیا، جہاز کے ملبے کا جائزہ لیا اور وہاں پر جو گھر تباہ ہوئے نقصان جن کو پہنچا تھا ان گھروں کی تصاویر بنائی، ان کا معائنہ کیا اور
जो सिविल एविएशन और पीआईए की टीम थी उन्होंने भी उनको वहां पर ब्रीफिंग दी। तमाम बादशाह उन्होंने रनवे, कराची एयरपोर्ट पर जो रनवे था जहां पर पहले जहाज ने लैंडिंग की थी, उस रनवे का भी जायजा लिया और सूरत हाल को देखा कि जहाज ने बगैर पहिए खुले किस तरीके से अटैक किया, और जो रगड़े वहां पर थी उन तमाम को जो है उन्होंने फोकस किया, और वो सारे शहद और सबूतों के साथ जो है वो टीम ने अपना ये 1.25 घंटा तकरीबन मॉडल कॉलोनी जो है वकूए पर दौरा किया, और बाद ये एयरपोर्ट पर भी गए। ताम ये अपने जायजे ले रही हैं टीमें। फ्रांस की एयरबस की कंपनी की जो टीमें हैं वो आई हुई हैं, उन्होंने रिकॉर्डर भी कब्जे में अपने ले लिया है और ब्लैक बॉक्स भी उनको दे दिया गया था। उसके अलावा जो जरूरी जो चीजें थी जिनमें जहाज के जो पुर्जात थे या और एविडेंस थे वो शायद उन्होंने इकट्ठे कर ली, और आज रात 10 बजे तक बताया जा रहा है कि ये टीम वापस फ्रांस से रवाना हो जाएगी, और वहां पहुंचकर जो है अपने ये लिबार्टियों वगैरह में तमाम तर चीजों का चेकअप किया जाएगा। इन एविडेंस और शवायद का जायजा लेने के बाद वो अपनी हतमी रिपोर्ट मरतब करेंगी। बहुत शुक्रिया मलिक मुनव्वर हुसैन तमाम तफसीलात से अपडेट करने के लिए। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट एंड इन्वेस्टिगेशन टीम की भी एयर बस टीम के हमरा मौजूद हैं, जबकि एयर बस की टीम ने यहाँ हादसे के शिकार तैयारे के मलबे का मुआयना किया है। तहकीकाती टीम ने तैयारे के इंजनों, लैंडिंग गियर, विंग्स और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम का जायजा लिया है। कराची तैयारे हादसे के बाद पीआईए ने फ्लाइट ऑपरेशंस कंट्रोल सिस्टम तब्दील करने का फैसला कर लिया। टर्की की कंपनी से स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम से मुंसलिक नया निजाम हासिल किया जाएगा। दूसरी जानिब पीआईए जराये के मुताबिक बताया गया है कि पीआईए पुराने फ्लाइट ऑपरेशंस कंट्रोल सिस्टम को जदीद स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम से तब्दील करने जा रहा है। जदीद और आलमी मयार के मुताबिक फ्लाइट ऑपरेशंस कंट्रोल सिस्टम टर्की से हासिल किया जाएगा। जदीद फ्लाइट सिस्टम से पीआईए तैयारों को हादसा से बचाने में बहुत मुआवनत मिलेगी। जराये का कहना है कि स्टेट ऑफ द आर्ट फ्लाइट सिस्टम से पीआईए की सर्विस डिलीवरी आलमी मयार की हो जाएगी। वजीर दाखिला एजाज शाह की कराची तैयारा हादसे में शहीद पायलट सज्जाद के घर जाकर अहले खाना से ताज़ियत। उनका कहना था कि पायलट ने आखिरी लम्हे तक अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। वजीर दाखिला एजाज शाह ने पायलट मरहूम के घर पहुंचे, जहां पर वुरसा से इजहार ताज़ियत किया और मरहूम के लिए फातह खानी की। उन्होंने लवाहिकीन से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पायलट सज्जाद के जाने पर दिली रंज हुआ है। इस मुश्किल घड़ी में आपके गम में बराबर के शरीक हैं। दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए। पीआईए तैयारा हादसे की तहकीकात इन्वेस्टिगेशन टीम ने कौमी एयरलाइन के चीफ पायलट से जहाज के कप्तान सज्जाद की तफसीलात तलब कर ली। हादसे से महज 2 रोज कबल कैप्टन सज्जाद इसी रूट पर लाहौर से कराची फ्लाइट ऑपरेट कर चुके हैं। 4 रुकनी तहकीकाती टीम हादसे की वजूहात का पता लगाने के लिए मुख्तलिफ जाफियों से तहकीकात कर रही है। इसी तनाजुर में तहकीकाती टीम ने पीआईए के चीफ पायलट सेफ्टी से कैप्टन सज्जाद की मजमूई फ्लाइंग और 22 मई से कबल का तमाम रिकॉर्ड मंगवा लिया है। तहकीकाती टीम ये भी देख रही है कि PK 8303 के पायलट कैप्टन सज्जाद ने 22 मई से कबल कौन कौन से सेक्टर और रूट पर फ्लाइंग की। तहकीकाती टीम की जानिब से इस बात की भी बाज़पुर्स की जा रही है कि हादसे से महज 2 रोज कबल क्या कैप्टन सज्जाद ने 20 मई को इसी रूट पर लाहौर से कराची फ्लाइट ऑपरेशन कर चुके हैं। तहकीकाती टीम की जानिब से इस हवाले से भी इस्तफसार किया जा रहा है कि अपने लॉग बुक की रूह से क्या कैप्टन सज्जाद रोजे की हालत में थे, इसकी भी तफसीलात फराहम की जाएगी। जराये के मुताबिक तहकीकाती टीम की जानिब से ये भी बावर करवाने के लिए कहा गया है कि कैप्टन सज्जाद गुल दौरान प्रवास थकावट के शिकार तो नहीं थे। फैसल ईदी का कहना है कि पीआईए तैयारा हादसे में जामहक होने वाले 36 मुसाफिरों के लवाहिकीन अपने प्यारों की लाशें बगैर तस्दीकी मुर्दा खानों से जबरदस्ती ले गए। वुरसा मुर्दा खाने में हंगामा मचाते हैं और अपने तौर पर शनाख्त करके लाश ले जाते हैं। फैसल ईदी ने BBC से गुफ्तगू करते हुए बताया कि लवाहिकीन इजाजतनामे के बगैर जबरदस्ती लाशें ले जा रहे हैं, जिनकी अभी तक शनाख्त नहीं हुई। ईदी फाउंडेशन के सरबराह ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि वुरसा मुर्दा खाने में हंगामा मचाते हैं और अपने तौर पर शनाख्त करके लाश ले जाते हैं। दूसरी जानिब हुकूमत सिंध की जानिब से इस मामले पर लाइल्मी का इजहार किया गया है।
वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान कहते हैं कि PIA के तैयारे हादसे की तहकीकाती रिपोर्ट जल्द से जल्द मुरतब की जाएगी। कोई भी इंसानी जानों के ज़या की तलाफी नहीं कर सकता। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान का कहना था कि हम शहदा के खानदानों के दुख में बराबर के शरीक हैं। कोई भी इंसानी जानों के ज़या की तलाफी नहीं कर सकता। ताहम हुकूमत शहदा के खानदानों को 10-10 लाख रुपए की इमदाद की फराहमी का अमल तेज करेगी। वफाकी वजीर ने कहा कि मालियाती तखमीना के बाद इन लोगों को भी मुआवजा दिया जाएगा जिनके मकानों, गाड़ियों या दूसरी इमलाक को नुकसान पहुंचा है। गुलाम सरवर खान ने कहा कि 3 माह में वाक़े की कम अज़ कम इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट यकीनी बनाई जाएगी। उन्होंने यकीन दिलाया कि वाक़े की आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ तहकीकात की जाएंगी और अगर कोई भी इसका जिम्मेदार पाया गया तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेस, इमदादी इदारों और आम शहरियों ने हादसे के मुतासरीन को बचाने के लिए गैर मामूली इंसानी जज्बे का मुजाहरा किया। पत्तोकी में ट्रेन और कार में तसादुम, 4 अफराद जहां बहक, मरने वालों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। हादसा इस वक्त पेश आया जब फाटक क्रॉस करते हुए कार ट्रेन की जद में आ गई। वजीर आला पंजाब का वाक़े पर इजहार अफसोस, फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। कार में सवार 2 खातीन और 2 मर्द गहलन जा रहे थे कि फाटक क्रॉस करते हुए खैबर मेल ट्रेन की जद में आ गए। ट्रेन गाड़ी को 1 किलोमीटर तक घसीटती हुई साथ ले गई। हादसे में जाँ बहक होने वाले 2 भाई हम्माद और जवाद के हमरा इनकी बीवियां थी। एनी शाहिदीन का कहना है कि हादसा फाटक मुलाजमीन की गफलत से पेश आया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने एक ही खानदान के 4 अफराद के जाँ बहक होने पर दुख और अफसोस का इजहार किया और हादसे के बारे में इंतजामिया से रिपोर्ट तलब कर ली। ईद के दिनों में SOPs के खिलाफ वर्जी हुई है। चेयरमैन NTMA कहते हैं कि वेंटिलेटर्स के हवाले से हालात कंट्रोल में हैं। कहा कि कोरोना के साथ टिड्डी दल के हमले का भी सामना है। उम्मीद है लोग समाजी फासलों और एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखेंगे। चेयरमैन NTMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि मुल्क में 128 अफराद 2 वेंटिलेटर्स पर हैं। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में करीबन 4200 वेंटिलेटर्स हैं। पाकिस्तान में वेंटिलेटर्स का कोई मसला नहीं। 1310 वेंटिलेटर्स का ऑर्डर दिया हुआ है। हालात यही रहे तो 2000 वेंटिलेटर्स की जरूरत होगी। चेयरमैन NTMA ने खबरदार किया है कि ईद के दिनों में SOPs की खिलाफ वर्जी हुई है। उम्मीद है लोग समाजी फासलों और एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखेंगे। चेयरमैन NTMA ने वाज़ेह किया है कि कोरोना के साथ साथ टिड्डी दल का भी सामना है। टिड्डी दल सियासी मसला नहीं। तमाम सियासी और मजहबी जमातों से कहते हैं आए मिलकर काम करें। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। आप आजाद हैं, आजाद रहे। वेलकम बैक। पाकिस्तान में 24 घंटों में कोरोना के मजीद 34 मरीजों का इंतकाल हो गया। अमवात 1197 हो गई। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के 18,314 मरीज अब तक सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मरीज सिंध में हैं, जहां तादाद 22,491 तक जा पहुंची है। कोरोना वायरस की वजह से पंजाब में 20,654, खैबर पख्तूनख्वा में 8,080, बलूचिस्तान में 3,468, इस्लामाबाद में 1,728, गिलगित बल्तिस्तान में 630 और आजाद कश्मीर में 211 केसेस रिपोर्ट हो चुके। कोरोना वायरस के बायस सबसे ज्यादा अमवात खैबर पख्तूनख्वा में हुई, जहां 408 अफराद जान की बाजी हार चुके। सिंध में 369, पंजाब में 352, इस्लामाबाद में 17, गिलगित बिल्तिस्तान में 8, बलूचिस्तान में 41 और आजाद कश्मीर में 2 शख्स कोरोना वायरस से जाँ बहक हो चुके। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 14,705 टेस्ट किए गए, जबकि मजमूई तौर पर 4,60,692 टेस्ट किए जा चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना का पहला केस 26 फरवरी को रजिस्टर हुआ और 1000 अमवात 21 मई तक हुई। 1000 अमवात होने में 85 दिन लगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मुल्क में कोरोना से मुतासरीन और अमवात की शरह में इजाफे पर इजहार अफसोस। हुकूमत से जामिया कौमी हिकमत अमली तश्कील देने का मुतालबा। कहा कि हुकूमत ने लॉकडाउन के नफाज और खोलने से पहले हिकमत अमली मुरतब की होती तो मुतासरीन की तादाद में बेतहाशा इजाफा न होता। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का कहना था कि लॉकडाउन के नफाज और खोलने से पहले हिकमत अमली मुरतब की होती तो मुतासरीन की तादाद में बेतहाशा इजाफा न होता। फिर कहता हूँ कि मजीद इजाफा वक्त ज़ाया ना करें, हम जहद जामिया कौमी हिकमत अमली बनाएं। उन्होंने कहा कि टेस्टिंग के डेटा के बारे में कौम को बताया जाए।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अब खबर यह है कि वजीर आजम के मावन खसूसी डॉक्टर शहबाज गिल का कहना है कि वजीर आजम इमरान खान कोरोना से मुतल्लिक जिस हिकमत अमली की बात शुरू से कर रहे थे, दुनिया आज इसे अपना रही है। शहबाज शरीफ की जानिब से कोरोना की सूरत हाल पर तशवीश से मुतल्लिक बयान के रद्द अमल में शहबाज गिल ने कहा कि अपोजिशन लीडर के पास एक ही हिकमत अमली है और वो मीडिया में जिंदा रहने के लिए लिखे हुए घिसे पटे बयान देने और खुद को कोरोना पर इजलास बुलाकर कोरोना के डर से इसमें शामिल न होने की हिकमत अमली है। शहबाज गिल का अपोजिशन लीडर को मुखातिब करते हुए कहना था कि आप आखिर कहना क्या चाहते हैं, लफाजी की बजाय तजवीज़ बताएं जो आपने दी हो। क्या आप बताएंगे जहां आपने अपनी तजावीज़ देना थी वहां क्यों नहीं आए? नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की मीटिंग में लम्हा बा लम्हा सूरत हाल देखते हुए फैसले किए जाते हैं। मुआवन खसूसी का कहना था कि हुकूमत और अवाम को मिलकर इस वबा का मुकाबला करना है। जड़ावाला में थाना रोडाला की हदूद में अलमनाक वाकया, कमसिन बहन भाई खेलते हुए आटे वाले संदूक में छुप गए। ड्रम का ढक्कन बंद होने से 4 साला नूर और 1.5 साला मोहसिन दम घुटने से जाँ बहक। वाकये के दौरान वालिदैन सो रहे थे। जड़ावाला में थाना रोडाला की हदूद में अलमनाक वाकया, कमसिन बहन भाई खेलते हुए आटे वाले ड्रम में छुप गए। ड्रम का ढक्कन बंद होने से 4 साला नूर और 1.5 साला मोहसिन दम घुटने से जाँ बहक हो गया। वाकये के दौरान वालिदैन सो रहे थे। दुनिया भर में कोरोना से 3,47,000 हलाकतें हो गईं, जबकि मरीजों की तादाद 55,88,000 से तजावुज कर गई। दुनिया भर में कोरोना केसेस की तादाद तेजी से इजाफा जारी है और मुतासिरा अफराद की तादाद 55,80,000 से बढ़ गई, जबकि 3,47,873 अफराद जान की बाजी हार चुके। चीन दुनिया भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 65,000 नए केसेस सामने आए। 23,65,000 से जायद अफराद कोरोना को शिकस्त देकर सेहतयाब हो चुके। अमरीका में कोरोना से मजीद 443 अफराद मौत के मुंह में चले गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 1 लाख के करीब पहुंच गई। कोरोना के मरीजों की तादाद 17,06,000 से बढ़ गई है और 4.5 लाख से जायद अफराद सेहतयाब हो चुके। ब्राजील कोरोना वायरस मुतासरीन की ममालिक की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। ब्राजील में 24 घंटे के दौरान मजीद 386 अफराद हलाक हो चुके हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक और अफसोसनाक खबर से आपको अपडेट करें। शिकारपुर दक्कन में पुरानी दुश्मनी के नतीजे में चांटिया बरादरी के 2 ग्रुपों में तसादम। चांटिया बरादरी के 3 अफराद नां बहक हो गए, जिनकी शनाख्त बहादुर चांटियों, जाड़ू चांटियों, नवीद चांटियों के नामों से हुई है। शिकारपुर दक्कन में पुरानी दुश्मनी के नतीजे में चांटिया बरादरी के 2 ग्रुपों में तसादम हो गया। चांटिया बरादरी के 3 अफराद जान की बाजी हार गए, जिनकी शनाख्त बहादुर चांटियों, जाड़ू चांटियों, नवीद चांटियों के नामों से हुई। सऊदी अरब में 28 मई से कोरोना वायरस की वजह से जारी पाबंदियां उठा ली गई। मुल्क भर में कारोबारी जिंदगी बहाल करने का शाही फरमान जारी कर दिया गया। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के बायस लगाई गई पाबंदियां उठा ली गई और 28 मई से मामूलाती जिंदगी बहाल हो जाएंगी। सऊदी वजारत दाखिला की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक मक्का मुकरमा के अलावा मुल्क भर में मसाजिद में नमाज जुमा अदा की जाएगी और अब इसकी इजाजत दी गई, जबकि अंदरून मुल्क परवाजों का सिलसिला भी शुरू कर दिया जाएगा। शाही फरमान में कहा गया कि 21 जून के बाद जिंदगी मामूल के मुताबिक बहाल कर दी जाएगी। WHO ने खबरदार किया है कि जिन ममालिक में कोरोना केसेस कम हैं वहां वायरस की दूसरी लहर आ सकती है। हम ये कयास नहीं कर सकते कि मर्ज खत्म हो रहा है, क्योंकि दूसरी लहर कुछ महीनों बाद आती है, इसलिए एहतियाती तदाबीर जारी रखी जाएं। आलमी अदारा सेहत ने कहा कि वो ममालिक जहां कोरोना की वबा में कमी हो रही है, अगर वो इस वबा को रोकने के इकदाम बहुत जल्द दस्तबरदार हो चुके हैं तो फिर उन्हें वबा की दूसरी लहर का सामना करना पड़ सकता है। WHO ने एक ऑनलाइन ब्रीफिंग में बताया कि बहुत सारे ममालिक में केसेस कम हो रहे हैं तो वस्ती और जनूबी अमेरिका, जनूबी एशिया और अफ्रीका में बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वबाई बीमारी अक्सर लहरों की सूरत में आती है। इसका मतलब ये है कि कोरोना वायरस इस साल के आखिर में इन जगहों पर वापस आ सकता है जहां पहली लहर खत्म हो रही है। कसूर में पुलिस कांस्टेबल ने मुबैना तौर पर बुराई पर आमादा ना होने पर FSC के तालिब इल्म हाफिज कुरान को छोटे भाई के सामने गोली मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। वालिदैन का मुलजिम को सख्त सजा देने का मुतालबा। वजीर आला पंजाब का वाक़े का नोटिस IG से रिपोर्ट तलब कर ली। कसूर में कानून के रखवाले ने ही कानून की धज्जियां उड़ा थी। अवाम का मुहाफिज अवाम का ही दुश्मन बन गया। मासूम
नामी पुलिस कांस्टेबल ने मुबैना तौर पर बुराई पर आमादा ना होने पर FSC के तालिब इल्म हाफिज कुरान को गोली मारकर कत्ल कर दिया। इमाम मस्जिद कारी खलीलुर रहमान और इनकी अहलिया ने रोते हुए मीडिया को बताया कि उनका बेटा समीउर रहमान नमाज फजर के लिए मस्जिद जा रहा था कि मासूम नामी कांस्टेबल ने इसे रोक लिया और कहा कि मेरी बात मानो वरना गोली मार दूंगा। मकतूल के छोटे भाई के सामने ये सारा वाकया हुआ। मकतूल ने इनकार किया तो मुलजिम ने इसे कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मकतूल के वालिदैन ने मुतालबा किया कि मुलजिम को मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चलाकर कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। शाहपुर के करीब मोटरसाइकिल सवार फैमिली समेत नहर लोअर जेल में गिर गई, जहां पर 2 खातीन और बच्ची समेत 4 अफराद अलमनाक हादसे में जाँ बहक हो गए। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बदकिस्मत खानदान शाहपुर से भाग कर जा रहा था। शाहपुर के करीब अंधोनाक हादसा पेश आया जब एक मोटरसाइकिल सवार शख्स फैमिली समेत नहर लोअर जेहलम में गिर गया। अलमनाक हादसे में 2 खातीन और बच्ची समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बदकिस्मत खानदान शाहपुर से भाग कर जा रहा था। आरिवाला से खबर है, ससुरालियों के घर में घुसकर फायरिंग कर दी। आरिवाला से आपको बता रहे हैं कि फायरिंग से एक खातून जाँ बहक जबकि दूसरी जख्मी हो गई। आरिवाला में नाराज बीवी के ना मानने पर साथियों के हमरा ससुरालियों के घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग से मुलजिम इमरान की दादी जाँ बहक जबकि सास शदीद जख्मी हो गई। मुलजिम इमरान की बीवी अरसे दराज से नाराज थी, ना मानने पर तैश में आकर फायरिंग कर दी। पुलिस ने रहमत बीबी की नाश और जख्मी सास को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुलजिम इमरान साथियों के हमरा फायरिंग करके फरार हो गया। तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर उलट गई। फेरोज बठुआ फैसलाबाद रोड नज़ नेशनल फीड मिल निजी कंपनी की तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर उलट गई। हादसे में बस में सवार 5 मुसाफिर जख्मी हो गए, जिनको फौरी तौर पर रेस्क्यू ने तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। शहदाद कोट प्रेस क्लब में मोहल्ला करीबाबाद की रिहायशी बेवा खातून भायल मक्सी ने अपने सगे बेटों लियाकत मक्सी और तारिक मक्सी के हमरा सौतेले बेटों के खिलाफ कुरान पाक हाथों में उठाकर एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाज करने वाली बेवा खातून का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि इसके मरहूम शौहर अली गौहर मक्सी के शहदाद कोट में 3 मकानात, 2 दुकानें और देहनूरपुर में 80 जरेब जमीन मलकियत है, जिसे इसके सौतेले बेटे मुमताज और नादिर अली मक्सी हड़प करना चाहते हैं और हमारे शरई हिस्से से महरूम करना चाहते हैं। उनका कहना था कि इनके सौतेले बेटों ने मुसल्लह अफराद के हमरा इनकी जमीन पर कब्जा कर लिया और हमें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। उनका कहना था कि हमने मुल्जिमान मुमताज, नादिर, गुलाम अली मक्सी, गुलजार, सद्दाम और जाहिद मक्सी के खिलाफ थाना ए सेक्शन में मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम हो गई। उन्होंने कहा कि SSP कंबर शहदाद कोट से पुरजोर मुतालबा किया कि उन्हें तहफ्फुज और इंसाफ फराहम किया जाए। ईद के मौके पर पोल्ट्री एसोसिएशन ने हुकूमत से क्या किया वादा हवा में उड़ा दिया। मुर्गी का गोश्त फी किलो 350 से 400 रुपए किलो तक फरोख्त। अवाम परेशान। दूसरी तरफ मियां असलम इकबाल कहते हैं कि मनमानी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। देखते हैं शेराज निसार की इस रिपोर्ट में। सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत मियां असलम इकबाल ने डिप्टी कमिश्नर के हमरा टोरंटन मार्केट और दीगर बाजारों का दौरा किया। मुर्गी के गोश्त की कीमतों का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मियां असलम इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन ने हमारे साथ तय किया था कि ईद के 4 दिन तक मुर्गी का गोश्त 260 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से फरोख्त किया जाएगा और ईद के बाद मजीद बातचीत होगी जिसमें रेट दोबारा तय किए जाएंगे, लेकिन पोल्ट्री एसोसिएशन ने अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं की। गोश्त था 180 और 170, अब गोश्त हो गया 330 रुपए किलो। ये सारी कोरोना की वजह से। मुर्गी अभी रेट तो ज्यादा ही है, ईद रोजों से पहले रेट कम थे, 350 बता रहे हैं आपके सामने ही है। मैंने मुख्तलिफ मार्केटों का दौरा किया है और ये बात मुशाहिदे में आई है कि गोश्त मुकर्रर नरखों पर फरोख्त नहीं किया जा रहा। इस बारे में मियां असलम इकबाल ने कहा कि ग्रांड फरोशी जारी है और जो भी इसका जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भिजवाया जाएगा। कैमरामैन शहबाज अहमद के साथ शिराज निसार, टीवी टुडे लाहौर। वज़ीर कराची में पेट्रोल नायाब होने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल पंप्स को बंद कर दिया गया। पाकिस्तान पेट्रोलियम रिटेलर्स एसोसिएशन मेंबर समीर नजमल हुसैन की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि कराची शहर के मुख्तलिफ पंप्स पर पेट्रोल के स्टॉक खत्म होने पर उन्हें बंद कर दिया गया। समीर नजमल हुसैन ने कहा कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की जानिब से फ्यूल की सप्लाई मुतासिर है। और अब मौसम की सूरत हाल।
पंजाब समेत मुल्क भर में ईद के तीसरे रोज शदीद गर्मी का राज है, जबकि गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया। सक्खर, दादू, नवाबशाह में आज पारा 48, मुल्तान, डीजी खान में 46 तक रहा, जहां पर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम गर्मा। जौबन पर गर्मी हदों को छूने लगी। सिंध में सक्खर, नवाबशाह, मोजोदाड़ो, मिट्टी और जैकबाबाद शदीद गर्मी की लपेट में, जहां आज पारा 48 तक पहुंचने का इम्कान है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी मौसम शदीद गर्म है। लाहौर में दर्जा हरारत 44, मुल्तान और बहावलपुर में 46, डीजी खान में 47 तक जा सकता है। जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर में आज मौसम खुश्क रहेगा। जम्मू में भी शदीद गर्मी है, दर्जा हरारत 42 तक जाने की पेशगोई है। श्रीनगर में 29, लिया में 13, बारामूला में और अनंतनाग में 28 सेंटीग्रेड रहेगा। लाहौर में गर्मी फिर जोर पकड़ने लगी। महकमे मौसमियात ने आज बागों के शहर का मौसम मजीद गर्म रहने की पेशगोई कर दी। लाहौर से शेराज निसार की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर शहर का दर्जा हरारत आज ज्यादा से ज्यादा 44 और कम से कम 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासब 52% है, जबकि हवाएं 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि आज मौसम बतदरीज गर्म ही रहेगा। दूसरी जानब आज ईद का तीसरा रोज है। शहरी घरों में बैठकर ईद मना रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से तफरीही मकामात भी बंद हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकलें और पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 3 रोज तक गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा और 30 तारीख को जो है वो लाहौर और गिदरमा में बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के रेडार्स के मुताबिक आइंदा 3 रोज में लाहौर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। इससे सिर्फ 2 ही तरीकों से बचा जा सकता है कि धूप की शिद्दत से बचने के लिए घरों से बाहर ना निकला जाए और ज्यादा से ज्यादा पानी पिया जाए। कैमरामैन शहबाज अहमद के साथ शिराज निसार, टीवी टुडे, लाहौर। और अब टुडेज इंटरनेशनल। सऊदी अरब के असीर रीजन में मूसलाधार बारिश और जालाबारी। बारिश के सैलाबी पानी में बहकर 2 अफराद नाबाहक हो गए। सऊदी अरब के असीर रीजन में गुज़श्ता 24 घंटों से मूसलाधार बारिश जारी है। सऊदी अरब के असीर रीजन में मुतअद्दिद पहाड़ी इलाकों में जालाबारी भी हुई, जबकि सैलाबी पानी की वजह से सहराई इलाकों में भी सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। सैलाबी पानी बहकर 2 अफराद नाबाहक हो गए हैं, जबकि पहाड़ी इलाकों में बारिश की पानी की वजह से कुदरती आबशार भी इलाकों की खूबसूरती में इजाफा कर रही है। सऊदी महकमे मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों में ममलकत के मुतअद्दिद इलाकों में बारिश, जबकि मुतअद्दिद में गर्द ग़बार का तूफान बर्पा हो रहा है। और अब टुडे स्पोर्ट्स। पीसीबी की जानिब से जून के पहले हफ्ते में क्रिकेट ट्रेनिंग शुरू करने का प्लान तरतीब दे दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के लिए एहतियाती गाइडलाइंस तैयार कर ली। गाइडलाइंस के तहत पीसीबी खिलाड़ियों की ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू करेगा। पीसीबी की जानिब से एहतियाती गाइडलाइंस खिलाड़ियों को भिजवा दी गई। कैंप के आगाज से कबल तमाम खिलाड़ियों को भी कोरोना टेस्ट होंगे, जबकि अकेडमी में जिम्मेदारियां निभाने वाले स्टाफ के कोरोना टेस्ट कराए जाएंगे। खिलाड़ियों के रहने और ट्रेनिंग के लिए नेशनल क्रिकेट अकेडमी को कोरोना फ्री बनाया जाएगा। गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल दरामद के साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू होगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले।